بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اوور کوٹ اسٹوڈنٹ، ہم اس کی ٹرانسلیشن کر رہے تھے، آج ہم ٹرانسلیشن کو کنٹینیو کریں گے۔ ہمارا پیراگراف ہے A few minutes later۔ A few minutes later، چند منٹ کے بعد۔ He found himself outside a large western music shop۔ اس نے اپنے آپ کو ایک بڑی مغربی موسیقی کی دکان کے باہر پایا۔ وداؤٹ ہیزیٹیشن، بنا ہچکچاہٹ کے ہی went in، وہ اندر چلا گیا۔ There were musical instruments of different kinds۔ مختلف قسم کے موسیقی کے آلات arranged on shelves around the walls، دیواروں کے گرد موجود خانوں کے اندر مرتب کیے گئے تھے۔ مختلف قسم کے موسیقی کے آلات دیواروں میں موجود خانوں کے اندر مرتب کیے گئے تھے۔ On the long table، لمبی میز پر attractively displayed were the latest hit songs۔ لمبی میز پر جدید مشہور نغموں کے یا گیتوں کی ایک پرکشش نمائش کی گئی تھی۔ A Spanish guitar، ایک ہسپانوی گٹار was hanging on the wall، دیوار کے اوپر لٹکا ہوا تھا۔ He examined it with the air of a connoisseur، اس نے ایک ماہر کے سے انداز میں اس کا معائنہ کیا۔ connoisseur ہوتا ہے ماہر، ایکسپرٹ کو کہتے ہیں۔ And studied the price label attached to it، اور اس کے ساتھ لگی ہوئی قیمت کی چٹ کو اس نے پڑھا۔ Then a huge German piano، پھر ایک بڑا جرمن پیانو diverted his attention، جرمن پیانو نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ Lifting the cover of the keyboard، he played a few notes۔ کلیدی تختی کا کور اٹھانے یا لحاف اٹھانے کے بعد he played a few notes، اس نے چند دھنیں بجائیں and closed it again، اور اس کو دوبارہ سے بند کر دیا۔ کی بورڈ یہاں پر کلیدی تختی، کی چابی کو کہتے ہیں کلیدی، اردو میں اس کو کہا جاتا ہے کلیدی، بورڈ تختی۔ One of the salesmen came up، ان میں سے ایک سیل مین آگے آیا۔ Good evening sir، شام بخیر جناب۔ He said، اس نے کہا۔ Can I help you sir، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ No thank you، نہیں شکریہ۔ The young man said with an air of indifference، نوجوان نے بے نیازی میں کہا۔ Then suddenly as if remembering something he called out، اور پھر اچانک جیسے کچھ یاد آتے ہی وہ پکار اٹھا۔ Oh yes، ہاں۔ Could you let me have a list of this month's gramophone record، کیا آپ مجھے اس مہینے کے گراموفون کے ریکارڈوں کی لسٹ دے سکتے ہیں؟ گراموفون بیٹا پہلے جو تھی وہ ٹیپ وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، تو اس وقت یہ ایک بڑے سے آلات ہوتے تھے، گول پلیٹس ہوتی تھیں گراموفون کی، وہ اس میں ڈالتے تھے تو وہ گیت چلا کرتے تھے، تو ان کے ریکارڈ کی ایک لسٹ جو تھی اس نے وہاں سے لی۔ He slipped the list into one of the pockets of his overcoat، اس نے اپنے اوور کوٹ کی جیبوں میں سے ایک جیب کے اندر اس لسٹ کو گرا لیا۔ And resumed his promenade on the mall، اور مال پر اپنی چہل قدمی کو دوبارہ سے جاری کر لیا۔ He stopped next at a book stall، پھر وہ ایک بک سٹال پر رکا، کتابوں کے دکان پر رکا۔ He picked up one or two magazines، اس نے وہاں سے ایک دو میگزین اٹھائے and after a hurried glance، اور ایک طائرانہ سی نظر ڈالتے ہوئے at the contents، ان کے عنوانات پر carefully، بڑی محتاط انداز میں replaced them، ان کو واپس رکھ دیا۔ ایک دو میگزین اٹھائے اور ان کے عنوانات پر ایک طائرانہ سی نظر ڈالتے ہوئے انہیں واپس وہیں پر رکھ دیا۔ A few yards further on، اور چند گز کے فاصلے پر مزید آگے a large Persian carpet، ایک ایرانی قالین، ایک بڑے ایرانی قالین which was hanging outside a shop، جو دکان کے باہر لٹکا ہوا تھا attracted his attention، اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ ایک ایرانی قالین نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ The owner of the shop wearing a long robe، اور دکان کے مالک ایک لمبا سا چوگا پہنے ہوئے and a silk turban، اور ایک ریشمی پگڑی
सर पे रखे हुए ग्रीटेड हिम वार्मली, उसे बड़ी गर्मजोशी से सलाम दुआ लिया। दुकान के मालिक ने एक लंबा चोगा पहने और सर पर रेशमी पगड़ी रखे हुए था, उसने बड़ी गर्मजोशी से उसके साथ सलाम लिया। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी दिस कारपेट, मैं सिर्फ इस कारपेट को देखना चाहता हूँ। द यंग मैन सेड, नौजवान ने कहा। एंड टू द कारपेट डीलर, सेड टू द कारपेट डीलर, उस कालीन फरोश से दुकानदार ने कहा। विद प्लायर, उस नौजवान ने कालीन फरोश से कहा कि मैं सिर्फ इसको देखना चाहता हूँ। विद प्लायर सर, बड़ी खुशी से जनाब। ओह डोंट बॉदर टू टेक इट डाउन, इसको उतारने की जहमत मत कीजिए। आई कैन सी इट क्वाइट वेल एज इट इज़, मैं इसको यहीं बहुत अच्छे से देख सकता हूँ। हाउ मच इज़ इट, कितने पैसे हुए? 1432 रुपीज़ सर। 1432, 32 रुपये हुए जनाब। The young man frowned as if to suggest, नौजवान ने यूं तेवरी पर बल डाले जैसे ये तासुर दे रहा हो। ओह सो मच, ये तो बहुत ज़्यादा है। यू हैव ओनली टू सेलेक्ट सर, आप सिर्फ चुनाव कीजिए जनाब। सेड द कारपेट डीलर एमिएबली, उस कालीन फरोश ने बड़ी खुश मजाजी से कहा कि आप सिर्फ चुनाव कीजिए, चुनिए। वी विल रिड्यूस द प्राइस टू द मिनिमम, हम कीमत कम से कम कर देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। द यंग मैन सेड अप्रूविंगली, नौजवान ने पसंदीदगी के आलम में कहा, बहुत शुक्रिया जनाब। अ फाइन कारपेट इंडीड, बहुत अच्छा कारपेट है, बहुत अच्छा कालीन है। अप्रूविंगली होता है अप्रिशिएबली, पसंदीदगी के आलम में। नौजवान ने कहा, बहुत अच्छा कारपेट है, बहुत अच्छा कालीन है। आई विल कम अगेन सम टाइम, मैं दोबारा फिर आऊँगा। एंड ही वॉकड अवे, और चला गया। The cream color rose which adorned the lapel of his overcoat had slipped and was about to fall. बादामी रंग का शरबती रंग का गुलाब का फूल, यहाँ क्रीम कलर से मुराद शरबती रंग लिया जाएगा। शरबती रंग का गुलाब का फूल जो उसके ओवरकोट के कॉलरों में सजा हुआ था, एडॉर्न का मतलब है सजा हुआ, डेकोरेटेड विद, सजा हुआ था, हैड स्लिप्ड, अब खिसक चुका था, एंड वॉज अबाउट टू फॉल, और गिरने ही वाला था। ही एडजस्टेड इट विद अ पेक्यूलियर स्माइल ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसने तमानित भरी एक मुस्कुराहट, मखसूस मुस्कुराहट के साथ उसको दुरुस्त किया। ही वॉज नाउ वॉकिंग अलॉन्ग द पेवमेंट नियर द हाई कोर्ट्स, अब वो हाई कोर्ट के करीब पेवमेंट फुटपाथ के साथ साथ चल रहा था। ही हैड बीन रोमिंग अबाउट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी देर से वहाँ रोमिंग अबाउट घूम फिर रहा था। बट हिज स्पिरिट्स वर स्टिल हाई, लेकिन उसके जज्बात अभी तक जवान थे, बुलंद थे। ही वॉज नीदर टायर्ड नॉर बोर्ड, ना तो वो थका था और ना ही इकताहट का शिकार हुआ था। एट दिस पार्ट ऑफ द मॉल के इस हिस्से में द क्राउड ऑफ पेडेस्ट्रियन हैड थिन डाउन, अब लोगों का पैदल चलने वालों का हजूम छट चुका था। थिन डाउन का मतलब होता है लेसन हो जाना, LESSON नहीं होगा, लेसन कम हो जाना, कम हो गया था, छट गया था। एंड देयर वर क्वाइट लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ एम्प्टी पेवमेंट, और खाली फुटपाथ के लंबे लंबे फासले थे, बिटवीन वन ग्रुप एंड द अदर, लोगों के एक ग्रोह से दूसरे के दरमियान खाली पेवमेंट, पैदल चलने खाली फुटपाथ के लंबे लंबे फासले मौजूद थे। द यंग मैन एज ही वेंट अलॉन्ग tried to spin his cane around one finger. The young man as he went along, नौजवान जैसे ही वो चलता जा रहा था उसने अपनी उंगली के गिर्द छड़ी को घुमाने की कोशिश की। But in his attempt he dropped it, लेकिन अपनी इस कोशिश में उसने इसे गिरा दिया। ओह सॉरी, ओह माजरत चाहता हूँ। He exclaimed, वो बेसाख्तगी के साथ बोला। And bending down picked it up, और उसे झुकते हुए उठा लिया। Meanwhile इसी दौरान a young couple who had been walking behind him, जो उसके पीछे चलता हुआ आ रहा था, एक नौजवान जोड़ा जो पीछे चलता हुआ आ रहा था, पास्ट बाय उसके करीब से गुजरा एंड वेंट अहेड ऑफ हिम, और उसके आगे आगे चलने लगा। द यूथ वॉज टॉल, नौजवान लंबा था, एंड वॉज वेयरिंग ब्लैक कॉर्डराइट ट्राउज़र, और उसने स्याह डोरीदार
कॉर्डराई कहते हैं डोरी नुमा उभरी हुई लकीरों वाला, और उसने डोरी नुमा उभरी हुई लकीरों वाला पजामा पहन रखा था। एंड अ लेदर जैकेट विद अ जिप, और एक जिप वाली चमड़े की जैकेट भी पहन रखी थी। इनका गेटअप, इनका लिबास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गर्ल वोर अ फ्लोपी शलवार ऑफ वाइट सॉटन, लड़की ने ढीली ढाली सफ़ेद सॉटन की शलवार को पहन रखा था। एंड अ ग्रीन कोट, और एक सब्ज कोट पहन रखा था। शी वॉज शॉर्टन, बल्कि अब वो छोटी और भारी भर कम थी, वो छोटे कद की और भारी भर कम थी। द यंग मैन, नौजवान, वॉज डिलाइटेड टू वॉच दिस स्पेक्टिकल, इस नज़ारे को देखकर बड़ा खुश हुआ। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और उनके पीछे चलना जारी रखा। सो फॉर द यंग मैन हैड फाउंड लिटिल टू इंटरेस्ट हिम अमंग द पर्सन्स, जहाँ तक नौजवान he found little to interest him among the persons he had observed that evening. उस शाम जो नौजवान उसने जो लोग देखे थे उनमें से अब कुछ ऐसा मिल गया था जो बायसे दिलचस्पी था। He had been perhaps too deeply engrossed in himself, शायद वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मगन रहा था। He followed them, उसने उनकी पैरवी की। Closely, hoping to get a glimpse of their faces, उनके चेहरों की एक झलक पाने की उम्मीद करते हुए उसने बड़े करीब से उनकी पैरवी की। And to hear more of their talk, और उनकी गुफ्तगू का ज़्यादा हिस्सा सुनने के लिए और उनके चेहरों की एक झलक पाने की उम्मीद करते हुए, करीब से उनके चेहरों की झलक पाने की उम्मीद करते हुए उसने उनकी पैरवी की। बाय नाउ, अब तक दे हैड रीच्ड द बिग क्रॉस रोड, वो बड़े चौराहे पर पहुंच चुके थे। नियर द जनरल पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस के करीब एक बड़े चौराहे पर पहुंच चुके थे। द पेयर स्टॉप फॉर अ मोमेंट, नौजवान वो जोड़ा एक लम्हे के लिए रुका। एंड आफ्टर क्रॉसिंग द मॉल, और मॉल रोड क्रॉस करने के बाद हेडेड टूवर्ड मैकलेट रोड की जानिब बढ़ गया। व्हेन द कपल हैड वॉक्ड सम 100 yards, जब वो जोड़ा चंद सौ गज चल चुका। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे आगे चंद सौ गज का फासला तय कर चुका। ही हरिड मूव्ड आफ्टर देम, तो उसने उनके पीछे जाने के लिए तेजी दिखाई। हार्डली हैड ही रीच्ड हाफ वे अक्रॉस द रोड, अभी बमुश्किल ही वो सड़क के आधी सड़क पे पहुंचा था। व्हेन अ ट्रक फुल ऑफ ब्रिक्स, जब ईंटों से भरा हुआ एक ट्रक केम फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से आया। लाइक अ गस्ट ऑफ विंड, हवा के तेज झोंके की तरह पीछे से आया। क्रशिंग हिम डाउन, स्पैड ऑफ टूवर्ड्स मैकलेट रोड, और उसे रौंदते हुए, क्रशिंग हिम रौंदते हुए, उसे स्पीड ऑफ कर जाना, स्पीडेड ऑफ आगे बढ़ जाना, स्पीडेड ऑफ टूवर्ड्स मैकलेट रोड की जानब तेज रफ्तारी से बढ़ गया। द ड्राइवर ऑफ द ट्रक हैड हर्ड अ श्रीक, ट्रक के ड्राइवर ने एक चीख सुनी। एंड हैड एक्चुअली फॉर अ मोमेंट स्लो डाउन, और एक लम्हे के लिए उसे आहिस्ता किया। बट रियलाइजिंग दैट समथिंग सीरियस हैड हैपेंड, लेकिन इस चीज़ का एहसास करते हुए कि कुछ संगीन रूनुमा हो चुका है। हैड टेकन एडवांटेज ऑफ द डार्कनेस, तारीकी का फ़ायदा उठाया। एंड हैड स्पेड अवे इनटू द नाइट, और रात में फरार हो गया। 2 or 3 पासेस बाय, 2-3 राहगीर हु हैड विटनेस द एक्सीडेंट शाउटेड, जिन्होंने ये हादसा देखा, चिल्लाने लगे। स्टॉप हिम, उसे रोको। टेक द नंबर लो। बट द ट्रक वॉज नो मोर टू बी सीन, लेकिन अब ट्रक मजीद नज़र नहीं आ रहा था। इन अ शॉर्ट वाइल, कुछ ही देर में, क्वाइट अ लार्ज क्राउड, एक बड़ा हजूम हैड कलेक्टेड, वहाँ जमा हो गया। अ ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑन हिज मोटर बाइक स्टॉप्ड, एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपनी मोटरसाइकिल पर रुका। द यंग मैन वॉज बैडली हर्ट, नौजवान बुरी तरह से जख्मी हुआ था। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ब्लड, बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। एंड ही वॉज इन अ वेरी प्रिकेरियस स्टेट, और वो बहुत ही तशवीशनाक हालत में था। प्रिकेरियस मीन क्रिटिकल कंडीशन, सीरियस कंडीशन। अ कार वॉज स्टॉप, एक कार को रोका गया। एंड वॉज लोडेड इनटू इट, और ही वॉज लोडेड इनटू इट, और उसे इसमें डाला गया। एंड टेकन टू नियर बाय हॉस्पिटल, और उसे करीबी हस्पताल में ले जाया गया। व्हेन दे रीच्ड देयर ही वॉज जस्ट अलाइव, जब वो वहाँ पहुँचे तो वो अभी जिंदा था। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। ये आप ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट हो रहे हैं वो आपने तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर
ون ایکسرسائز کا آپ دیکھیں گے کہ واٹ واز دا کلر آف دا اوور کوٹ آف ینگ مین, ہاؤ ڈیڈ ہی لک لائک, وائی ڈیڈ پیپل کم آؤٹ آن دی مال, ہو ور دا پیپل ویئرنگ سچ ڈریس اینڈ ہیڈ کم آن دا مال. وہ کہتا ہے وہ لوگ جو مال پہ آئے ہوئے تھے انہوں نے کس طرح کے لباس پہن رکھے تھے. وائی واز دا کیٹ شیورنگ, بلی کیوں کپ کپا رہی تھی, کولڈ تھی ڈیفینیٹلی. تو فرسٹ 5 کویسچنز جو ہیں آپ اس سے اٹیمپٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ چھٹا کویسچن ہے وائی ڈیڈ ڈرائیور آف دا ٹرک اسپیڈ اوے آفٹر دا ایکسیڈنٹ, ایکسیڈنٹ کے بعد ڈرائیور جو ہے وہ کیوں بھاگ نکلا تھا. تو یہ کویسچن 6 کویسچن یہاں کی ٹرانسلیشن میں اٹیمپٹ ہو رہے ہیں, یہ آپ نے ساتھ ہی تیار کر لینے ہیں. انشاءاللہ یہ لیسن میں آپ کے لائیو لیکچر کے اندر سنوں گی آپ لوگوں سے کویسچن آنسرز بھی اور ٹرانسلیشن بھی. اس کے ساتھ اللہ حافظ, بہت اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.